जगह में एक बार फिर से खैर मकदम अब जरा तस्करा करेंगे कि ये जंगबंदी मुआहदे की अभी खैर मुआहदा तो होना बाकी है, लेकिन इससे हटके अमेरिका की जानिब से जो बात की जा रही थी वो 10, एक तो ईरान के 10 नुकात थे, अमेरिका के 15 नुकात थे, लेकिन ये इंप्रेशन दिया जा रहा था कि 10 नुकात जो ईरान के हैं वो तस्लीम किए गए हैं, लेकिन बाद अज़ां उसके ऊपर हमने देखा कि मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आए और कहा गया कि जी वो 10 नुकात को हम मुस्तरद करते हैं, बल्कि कैरोलिन लेविट ने तो इस हद तक कह दिया कि हमने तो उसको कचरे की टोकरी में फेंक दिया। सुने जरा। So let me be clear and correct the record. The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. With the president's deadline fast approaching and the United States military completely decimating Iran with each passing hour, the regime acknowledged reality to the negotiating team. They put forward a more reasonable and entirely different and condensed plan to the president and his team. President Trump and the team determined the new modified plan was a workable basis on which to negotiate and to align it with our own 15-point proposal. The president's red lines, namely the end of Iranian enrichment in Iran, have not changed. And the idea that President Trump would ever accept an Iranian wish list as a deal is completely absurd. अच्छा जी, एक तो ये स्टेटमेंट सामने आ गया, दूसरा जेडी वेंस जो कि नायब सदर हैं जो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आया। क्या फरमाया उन्होंने, वो भी जरा सुने। In the past couple of days, I've seen a lot of reporting from the American media about the 10-point proposal that the Iranians have made. As I know, because I've been involved in this, there are 3 different 10-point proposals at least that I've seen floating around. The first 10-point proposal was something that was submitted, and we think, frankly, was probably written by ChatGPT, that was submitted to Steve Witkoff and Jared Kushner. That immediately went in the garbage and was rejected. There was a second 10-point proposal that was much more reasonable, that was based on some back and forth between us, between the Pakistanis and Indians. That is the 10-point proposal that the president was referencing in his truth yesterday. And then, frankly, I've seen a third 10-point proposal that's even more maximalist than the first 10-point proposal that's been floating around various social media channels. I've seen various organs, the New York Times, CNN, others, pick up and run the original 10-point proposal based on little more than a random Yahoo in Iran submitting it to public access television in the country of Iran, and then them saying that somehow represents the negotiating position of the government. अच्छा जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप अंदाजा करें कि वो 10 नुकात जो इधर उधर गर्दिश कर रहे थे, अब उनकी ऊपर ही सवाल उठ गए कि उनमें से असल में था कौन सा वैलिड। फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रुथ सोशल पर जो बयान दिया गया, उन्होंने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट किए गए निकात को कहा कि वो तो हैं ही ठीक नहीं, वो तो हैं ही धोखाधड़ी पे मबनी है, वो तो बस ऐसे ही लिखते रहते हैं, उनको पता कुछ नहीं है। फिर उसके बाद जनाब बाकर कालीबाग जो कि पार्लियामान के स्पीकर, उनकी जानिब से कहा गया कि जो ईरान के तजवीज़ करदा 10 नुकात हैं उनमें से 3 की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। नंबर 1 उन्होंने मेंशन किया वो लबनान में बमबारी का था, जिसका मैं इनिशियली तस्करा कर चुका हूं कि किस तरीके से वो रुकनी चाहिए थी। ये जो यूरेनियम इनरिचमेंट का जो पॉइंट था, ये आप बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर उन्होंने लिखते हैं कि डिनायल ऑफ ईरान राइट टू इनरिचमेंट which was included in the 6th clause of the framework। अच्छा, CNN की जानिब से जो ईरान के 10 निकात थे वो क्या थे, तो आप ये देखिए कि ये जब बयान दिया गया था और चीजें सामने आई थी, द US and Iran have agreed a ceasefire with talks to bridge the Gulf between them, और फिर here's what to know, तो इसके अंदर काफी डिटेल जो चीज दी गई थी, और फिर उसके अंदर 10 निकात का भी इसमें तस्करा था, और इसी तर्ज के 10 निकात जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से भी दिए गए थे। छठा नुकता जो है वो एक्सेप्टेंस ऑफ ईरान राइट टू न्यूक्लियर एनरिचमेंट। ये न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो नुकता है वो इसके अंदर मौजूद है। अब CNN की जानिब से जो है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का है, CNN की जानिब से जो नुकता है वो भी, वो जो पॉइंटर्स हैं वो भी इसी तरह के हैं। इसमें एक चीज मिसिंग ये है, वो क्या कि वो लेटेस्ट जो है वो फॉक्स न्यूज के साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात हुई है। प्रेसिडेंट ट्रम्प से फॉक्स न्यूज के एंकर ने पूछा कि जी वो 10 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उसको उसने गिरवाने की कोशिश की, यही न्यूयॉर्क टाइम्स CNN वाले। उन्होंने कहता है इट्स ऑल बुलशिट, आई नो व्हाट आर दोस 10 पॉइंट्स। And you know what he said actually? He said कि we have agreed on most of those 10 points. चोई साहब, मैं चोई साहब आपके पास आ रहा हूँ। So देखिए, अब ये जब निगोशिएशंस होनी है तो दोनों तरफ अपनी अपनी सजेशन, पोजीशंस, रिकमेंडेशंस जो सारी आगे दे रही हैं। देखिए, मेन जो है 3 अहम इश्यूज है, उसी के ऊपर बात होनी है, जो
बात कर रही है, बिल्कुल स्टेट ऑफ हार्मोज है, उनका राइट टू एनरिचमेंट है, ठीक है, और वो चाह रहे हैं कि अमेरिकन जो है उसकी खत्ते के अंदर प्रेजेंस है वो इस लेवल की हो इसके अंदर कि हमारी सिक्योरिटी को कोई कंसर्न मैं ये अर्ज कर रहा हूं, सेम इशू जिसके ऊपर यूक्रेन सारी के सारी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, मैं जरा बता देता हूं कि वो बेसिकली ट्रुथ सोशल पे उन्होंने कहा कि देयर इज ओनली वन ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल पॉइंट्स दैट आर एक्सेप्टेबल टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वी विल बी डिस्कसिंग देम बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। ठीक है, अच्छा एक तो चीज ये हो गई, लेकिन यहां पर सवाल काफी उठते हैं। एक तो ये है कि क्या, क्योंकि जो इंप्रेशन दिया जा रहा था स्टीव विटकॉफ की जानिब से जो बात की गई थी, जरा उसका भी हवाला दे दीजिए कि ये 26 मार्च को उन्होंने ये बेसिकली ये चीज खोल के रखी कि ईरान से मुज़ाकरात की शराइत क्या थी, अगर सुनवा सकें जी जल्दी से। Report to you and your team on our negotiations with Iran prior to Operation Epic Fury. No enrichment whatsoever. No chance of weaponizing whatsoever. Decommissioning of Fordow, Natanz, and Esfahan, which you destroyed in Operation Midnight Hammer. No stockpiling of any material, turning all enriched material over to us, and a cutback in Iran's missile